Assalamualaikum everyone. Today's topic of our lecture is fear of public speaking. Glassophobia. The average person ranks the fear of public speaking higher than the fear of death. ग्लासोफोबिया है क्या चीज़? दिस इज़ एक्चुअली द फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। एंड जो एवरेज बंदा होता है, ईच एंड एवरी पर्सन ऑलमोस्ट हैज़ दिस फेयर कि मतलब हम किस तरह से पब्लिक का सामना करें, उसके सामने हम किस तरह से बात करें. The truth is, this fear could be hurting your professional plus personal life. Okay, now the fact is कि actually in every field we have to face the people. हमें a variety of people को जो है वो face करना होता है, and we have to talk, we have to communicate in order to move forward in our lives. Either it is our personal life or professional life, ठीक है. So you feel nervous, your palms sweat, your stomach ties itself into knots. You don't want to do it, but you can overcome this fear of oral presentations with these some public speaking tips. Now mostly whenever we are facing the public for the first time or second time or third time, and we have this fear in mind, okay, so at that time we do feel nervous, okay, we start sweating, and a sort of like a depression is there that how to talk in front of them. But the fact is, it's not something that cannot be overcome. There are some tips that can be used in order to overcome this fear. Why public speaking? The question arises कि public speaking हम क्यों करें? So in business, it is essentially important for you to be able to get your point across. It is likely that all of us will one day have to speak in public. Whether we are giving a formal presentation to an audience or simply asking our boss for a promotion, speaking skills are essential to getting ahead in a professional setting. Okay, in almost every field, either it is being a jobian or being a business person, we have to deal with this thing, okay. Like if you want to communicate, so the fact is you have to learn this skill, ठीक है, कि किस तरह से आपने लोगों से बात करनी है. इसमें आपको of course if you are working in a professional environment, so वहाँ पर जो है आपको presentations भी deliver करनी होती हैं. Even being a teacher, you have to talk in front of the students of different levels, ठीक है. So over there also this skill is required. So the fear of public speaking is very real. However, there are some techniques to help you overcome this fear. The first one technique is get organized. When you organize all of your thoughts and materials, it helps you to become much more relaxed and calm. When you have clear, organized thoughts, it can greatly reduce your speaking anxiety because you can better focus on one thing at hand, giving a great speech. Get organized mean you have to प्री प्लान, ठीक है. पहले से आपने सब कुछ प्लान करना होता है कि एक्चुअली व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट. जब आपने ऑलरेडी प्लान किया है ये चीज़ एंड व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट, सो ऑफ कोर्स द थिंग विल बी क्लियर टू यू एंड इट विल बी ईजी फॉर यू कि मतलब आप अपनी एक फ्लुएंसी में जो है वहाँ पर बात कर लें. एंड व्हेन योर माइंड इज़ क्लियर, सो ऑफ कोर्स इट एक्चुअली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल, and it will help you to deliver your speech or talk easily. Second is practice and prepare extensively. Nothing takes the place of practicing and preparing for your speech. Write out a script of your key points, but don't read from the script word for word. After organizing your ideas, you can do one thing more. आप एक और काम भी कर सकते हैं. किस तरह से कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो पॉइंट्स जो हैं एक पेज पर ऑर्डर में जो है आपने बुलेट पॉइंट्स में लिख लिए. नाउ ऑफ कोर्स आपने स्टेज पर जाकर जो है वहाँ पर ये सारी चीज़ें रीड आउट नहीं करनी. रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग एंड रीडिंग, ठीक है. आपने जब प्रेजेंटेशन और स्पीकिंग करनी है ऑन दी स्टेज, सो इट इज़ समथिंग कि इट शुड बी इन अ नेचुरल वे, ठीक है. इट शुडंट गिव द इम्प्रेशन, वहाँ पर आपका एक इम्प्रेशन ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज़ से रीड आउट कर रहे हो, सो वहाँ पर वो नेचुरल लुक नहीं होगा, ठीक है. इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस थिंग a natural flow in your talk, you must practice this thing. Third is eliminate fear of rejection. Okay, what if my audience hates my speech? What if they boo me off stage? The fact is we all have this thing at the very early stage कि मतलब क्या हुआ अगर मेरे audience को मेरी बात अच्छी ना लगी, so what?
ठीक है. अ fear of rejection is there, बट द फैक्ट इज़ यू हैव टू चैनलाइज इट. अगर ऑडियंस वहाँ पर बैठे हैं आपके सामने, इट मीन्स दे हैव समथिंग इन दियर माइंड, दे हैव अ पर्पस, दे हैव अ मोटो, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठे हैं. ठीक है. सो दिस थिंग शुड बी एनफ फॉर यू, एनफ मोटिवेशन फॉर यू कि येस द पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. मतलब हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स टॉक जो है आप डिलीवर कर रहे हैं, लोग आपके सामने बैठे हैं. सो इट शुड रादर बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू फेयरफुल कि मतलब ऐसा ना हो कि मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़े. Focus on patterns. When you speak, try to get into a rhythm or a flow. Keep your sentences short and to the point and repeat key points. A short pause between points can add anticipation to what you are going to say next. अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि whenever you are going to talk about something, so try to have a rhythm and flow in your speech. ठीक है. It should give a sort of like natural flow should be there ताकि audience को भी understand करने में आसानी हो. ठीक है. And another thing is कि there should be a short pause. ठीक है. मतलब आपको थोड़ी देर के लिए रोकना भी चाहिए, ये नहीं कि आप जो है बस एक ही सांस से आप बोलते जा रहे हों. ठीक है. आपने मतलब it should be a pause of ब्रेक ऑफ 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड. ठीक है. इस तरह से होना चाहिए कि मतलब आपके ऑडियंस को भी टाइम मिले आपके इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने में. वॉच योर सेल्फ इन द मिरर. प्रैक्टिस योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ द मिरर as well as if you are speaking directly to someone. Pay attention to your facial expressions, your gestures, your body movements, how welcoming you appear. Okay, now before going to the stage, आपने अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज भी कर लिया. यू हैव रिटन इट ऑन द पेज एज़ वेल. एक ऑर्डर में आपने लेट सपोज लिख भी लिया. अब आइडियाज़ भी आपके ऑर्गेनाइज हो गए, लेकिन द फैक्ट इज़ द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट. ठीक है. सो फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रैक्टिस एक इजी काम ये हो सकता है कि यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं एंड जस्ट इमेजिन कि आपके सामने सारे ऑडियंस जो है वो बैठी हुई हैं. ठीक है. अब वहाँ पर आपने जब बात कर रहे हो तो कर रहे होते हो, सो डू ऑब्ज़र्व सम थिंग्स लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस. अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को देखें कि व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, सो आपके फेशियल एक्सप्रेशन मतलब बहुत हार्ड है या मतलब इट इज़ समथिंग फ्लेक्सिबल कि आपकी बात के साथ जो है वो चेंज हो रहे हैं. ठीक है. अप्स एंड डाउन्स आर देयर. आपके जेस्चर्स किस तरह से हैं, बॉडी मूवमेंट जो है आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या सिर्फ एक ही जगह पर जो है आप स्टिक हैं. एंड अनदर थिंग इज़ हाउ वेलकमिंग यू अपेयर. मीन्स कि आपकी ऑडियंस को आपसे एक एनर्जी मिलनी चाहिए. ठीक है. आपका ऑरा जो है इट शुड बी समथिंग लाइक अ पॉजिटिव एंड बूस्टिंग. Record yourself and learn your voice. Now, like in this time of technology, we do have mobiles, we do have other gadgets as well that we can use for this purpose. ठीक है. आप अभी जो है टेक्नोलॉजी को आप चैनलाइज कर ले पॉजिटिवली. किस तरह से कि आप अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड कर ले. ठीक है. या आप कैमरा से मतलब वीडियो भी मतलब बना सकते हैं whenever you are speaking. After recording it, do listen to it, do watch it. ठीक है. एंड ओवर देयर यू विल गेट द पॉइंट कि कहाँ पर जो है आपसे गलती हो रही हैं. एंड इट वुड बी बेटर फॉर यू कि आप साथ ही साथ में जब आप उसको देख रहे हो, उस वीडियो को या उस ऑडियो को आप सुन रहे हो, सो डू मेक सम पॉइंट्स कि हाँ यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था, यहाँ पर मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस इस तरह से होने चाहिए थे. Now these are the things that will help you कि yes, I am going to appear in this way in front of the audience. And yes, there are many people कि जिनको अपनी ही साउंड या अपनी ही वॉइस जो है वो सुनने की आदत नहीं होती. ठीक है. So do make yourself habitual to your own voice and speaking style as well. This will also boost your confidence. Work on your breathing. When you focus on your breathing, your voice will have more resonance and you will relax. यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि whenever you are going to speak, as I already told you, कि आपने एक ही सांस में सब कुछ नहीं कहना, but rather you have to take pauses. ठीक है. अब जब आप पास ले रहे हो, do try कि मतलब आप जो है do breathe for a while, जिससे आपको जो है एक the fact is you will get your rhythm. ठीक है. and you will get some energy as well. ठीक है. and आपके जो बात है उसमें एक resonance and you will feel relaxed. Practice some more. ठीक है. So as it is said, practice makes a man perfect. ठीक है. So nothing can replace practice.
The only way to learn to speak is to speak and speak and speak and speak and speak and speak and speak. ठीक है, सो आपने जब भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनानी है, सो द थिंग इज़ यू हैव टू स्पीक एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. ठीक है, जितना ज़्यादा आप सामना करोगे ऑडियंस का, मास का, ठीक है, सो इट विल हेल्प यू कि आप जो है स्किलफुल हो जाए. गिव योर स्पीच टू अनदर पर्सन. Now the fact is you have to find out something, someone like this आपके friend में हो या आपके family circle में हो, you can deliver the speech in front of him or her. ठीक है, and then yes you have to tell him or her this one point कि be honest. अब आप उसके सामने वो talk deliver करें and that person can help you कि आपके उसमें जो है मतलब कुछ points निकाले कि हाँ आप इस तरह से जो है इसको बेहतर बना सकते हैं. PowerPoints can be really great. ठीक है, now sometimes in your talks PowerPoints can be your best friend as well. How? Like for example if of course you would have practice, ठीक है, practice आपने already की होती हैं, but the fact is during your presentation maybe आप जो हैं एक point जो है आपके mind से skip हो जाए, you just forget about that. So PowerPoint like a sort of visual aid it could be, and it could help you कि मतलब to get your flow back in your talk. Sip water that's warm or room temperature. Sometimes squeezing some lemon into your water helps as well. It helps you lubricate your throat. Try to avoid sugary beverages before speaking. They can dry out your mouth and make it harder to talk. अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि बिफोर यूर टॉक यू कैन हैव सम वार्म वाटर. ठीक है, या रूम टेम्परेचर पर जो वाटर होता है आप उसको पी सकते हैं. एंड इफ़ यू स्क्वीज सम लेमन एज वेल, ठीक है, इट विल एक्चुअली मेक योर थ्रोट क्लियर एंड यू कैन स्पीक एंड यू कैन डिलीवर योर टॉक मच मोर विद अ गुड फ्लो. ठीक है, बट डू ट्राई कि आप जो है जितनी भी स्वीट थिंग्स है लाइक शुगरी जितनी भी बेवरेजेस हैं या चॉकलेट वगैरह है, डू ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स because during the talk it can just dry out your mouth. ठीक है, and then it will get difficult for you to get the flow. Pick a subject that you really care about. So of course like the fact is whenever you are going to deliver a talk you must be the master in that. ठीक है, आपका research उसमें जो है properly होना चाहिए. You should know about that thing in deep. ठीक है, बिकॉज यू कैन फेस एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. वहाँ पर किसी भी फील्ड के लोग हो सकते हैं. ठीक है, यू शुड कीप द ऑडियंस इन माइंड एज वेल, बट अलॉन्ग विद इट डू हैव द टॉपिक फॉर योर टॉक कि जिस पर आपका फुल कमांड हो. Focus on the material, not the audience. Focus on delivering your material in the best way possible. Don't worry about audience reactions. Again, as we talked about rejection, ठीक है, यहाँ पर भी आपने फिर क्या करना है कि मतलब डू ट्राई कि मतलब आप अपने प्रेजेंटेशन पर फोकस करें इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ऑडियंस कि हाँ इस बंदे का रिएक्शन किस तरह से है, वहाँ पर वो बंदा किस तरह से मतलब रिएक्ट कर रहा है. मे बी समवन इज़ देयर कि जो मतलब अपने मोबाइल में बिज़ी है, मे बी समवन इज़ देयर के जो कि दूसरों से बात कर रहा है. ठीक है, एंड बोरिंग फेसेस. सो ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क ऑन यूर सेल्फ कि आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकें. बट इफ़ ड्यूरिंग यूर टॉक आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे, सो ऑफ कोर्स यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड आपके लिए अपने पॉइंट डिलीवर करना मुश्किल हो जाएगा. अवॉइड टॉकिंग टू फास्ट. Talking fast during a speech interferes with your breathing patterns. If you talk too fast, you will breathe less. Practice slowing down when you speak and you will be more calm and relaxed. Again, this is your breathing technique कि आपने किस तरह से जो है अपने सांस को आप एज अ टूल यूज़ कर सकते हो कि आप अपनी फ़्लो को दोबारा से हासिल कर लें. Have pride in your work and recognize your success. Now this is the very important thing कि जब तक आप ख़ुद को नहीं मानती दुनिया भी आपको मानने वाली नहीं है. सो फर्स्ट यू हैव टू एक्नॉलेज योर सेल्फ. इवन आपके छोटे छोटे सक्सेस हों, इट विल बी वेरी स्मॉल फॉर समवन एल्स, बट दीज आर एक्चुअली द स्टेप्स कि आपको आगे ले जा सकती है. ठीक है, सो नेवर डिस्करेज योर सेल्फ. ठीक है, रादर ऑलवेज डू इनकरेज योर सेल्फ एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस. Develop a plan to improve your next speech. Of course, there is always a space for improvement no matter how much we get
वी कैन से स्केलफुल, ठीक है, जितने भी हम अच्छे बने, बट द फैक्ट इज़ देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सो जब भी आप जो है एक टॉक डिलीवर कर लें, डू ट्राई कि मतलब इफ़ यू कुड गेट सम ऑफ इट्स रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है इट्स वेलिंग गुड। लेकिन ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द टॉक यू वुड हैव ऑब्जर्व कि हाँ आपसे यहाँ पर जो है कोई गलती हुई है, यहाँ पर जो है आप फर्दर इम्प्रूव कर सकते थे, आपके पावर पॉइंट्स में जो है आप ये चीज़ें जो है वो डाल सकते थे। सो दीज आर ऑल द थिंग्स कि आपको खुद जो है अपने आप का एक द फैक्ट इज़ यू शुड बी द क्रिटिक ऑफ़ योर ओन सेल्फ एज़ वेल, ठीक है, एंड डू ट्राई कि फर्दर जो है आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हियर कम्स कंक्लूजन ऑफ टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। ग्लासोफोबिया हमारे साथ फेयर है पब्लिक स्पीकिंग का, बट ऑफ कोर्स द फैक्ट इज़ कि देयर इज़ ऑलवेज अ वे कि जिससे हम इस फेयर को अवॉइड कर सकते हैं एंड वी कैन चैनलाइज इट। वेन एवर यू फेस अ फेयर, जस्ट डू मेक इट अ चैलेंज फॉर यू कि you have to overcome this, ठीक है, and everything need patience plus consistency, आपने तसल्सल से काम करना है and patience से, so of course success will be yours. Thank you, keep growing and shining.